آداب سے میں ہوں صفی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلگو دیشم قائدین کی بس یاترا بے شرمی کی علامت، ریاستی وزیر ہریش راؤ کی تنقید۔ طوفان ہدہد وشاکھاپٹنم کے ساحل سے ٹکرا گیا، ضلع میں بڑے پیمانے پر تباہی، 5 افراد ہلاک۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے پیر کو انتخابی مہم کا آخری دن، انتخابی عمل میں مجلس کے اترنے سے مہاراشٹر کی سیاست میں ہلچل۔ منگل ہاٹ کے مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کے ٹھکانوں پر پولیس کے دھاوے، غیر سماجی 42 افراد گرفتار۔ گانجا منتقل کرنے والی 4 رکنی ٹولی گرفتار، ریلوے پولیس کی کارروائی۔ اور چندران گٹے کے علاقے الجبل کالونی میں سرقے کی سنگین واردات، 20 تولے طلائی زیورات اور 1.5 لاکھ روپے لے کر سارق فرار۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ ہدہد طوفان وشاکھاپٹنم کے ساحل سے ٹکرا گیا ہے۔ اتوار کی صبح 11 بجے سے قبل طوفان وشاکھاپٹنم کے بھیولی اور کیلاش گیری علاقوں سے ٹکرایا۔ اس طوفان سے وشاکھاپٹنم میں عام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ بڑے پیمانے پر مالی نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ طوفان نے غیر معمولی تباہی مچائی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ طوفان کا یہ اثر 15 اکتوبر تک رہے گا اور ساحلی آندھرا کے علاقوں میں شدید بارش ہوگی۔ طوفان کے ساحلی وشاکھاپٹنم سے ٹکرانے کے وقت 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی تھی۔ اب تک 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ شریکاکولم، وجیا نگرم، مشرقی گوداوری، مغربی گوداوری کے علاوہ مچھلی پٹنم میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ این ڈی آر ایف اور فوج کی ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے 62 ٹرینوں کو منسوخ کیا ہے، جبکہ 51 ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ این ڈی آر ایف کی طرف سے 42 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ طوفان کی وجہ سے اڑیسہ، چھتیس گڑھ اور اتر پردیش کے بعض علاقوں میں بھی بارش ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ بارش کی وجہ سے طوفانی ہواؤں نے سینکڑوں درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ برقی کے کھمبے بھی گر چکے ہیں۔ وشاکھاپٹنم کے کئی علاقے تاریکی میں ڈوب گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آنے والے چند گھنٹے اور بھی خطرناک ہو سکتے ہیں اور یہ طوفان مزید تباہی مچا سکتا ہے۔
रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि तेलुगुदेशम कायदीन बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए बस यात्रा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में बरकी बहरान के असल जिम्मेदार चंद्रबाबू नायडू हैं। इसके बावजूद तेलुगुदेशम कायदीन बस यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बस यात्रा नहीं बल्कि तफरी यात्रा है और कायदीन फोटो खिंचवाने के लिए पोज देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृष्णापट्टनम के बरकी प्रोजेक्ट में तेलंगाना हुकूमत की ही सरमायाकारी है और तेलंगाना को आने वाले 54% बरकी को चंद्रबाबू नायडू रोक रहे हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना जैनको की जानिब से मकतूब लिखे जाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ई दयाकर और एल रमना को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बस यात्रा निकालने वाले चंद्रबाबू नायडू के गुलाम हैं। वो पहले तेलंगाना के लिए 54% बरकी हासिल करे, उसके बाद बात करें। उन्होंने कहा कि लोकेश और शर्मिला की क़यादत में काम करने वाले दोनों जमातों के कायदीन को शर्म आनी चाहिए। ఎమ్మెల్యేలు తెలంగాణ బిడ్డల్లాగా వాళ్ళు వ్యవహరించడం లేదు, ఆంధ్ర బాబుకు బానిసల్లాగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారు ఇవాళ వాళ్ళు. వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరితేనేమో అది అభివృద్ధి మంత్రం. తెలంగాణలో చంద్రబాబు ద్రోహాలు, చంద్రబాబు కుట్రలు, తెలంగాణకు కరెంటు రాకుండా చంద్రబాబు చేస్తున్న విషయాలను గుర్తించి తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఎవరైనా టీఆర్ఎస్ లో చేరితే ఇది ఆకర్షట. అంటే మీరు చేస్తే అభివృద్ధి, మేము చేస్తే ఆకర్ష. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 रोजा दिल्ली के दौरे के बाद शहर वापस हो गए हैं। दिल्ली में अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला ने तेलंगाना के लिए अलहदा हाईकोर्ट के क़याम के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नुमाइंदगी की है। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर फिनांस अरुण जेटली से भी मुलाकात करते हुए रियासत को खुसूसी दर्जा देने के अलावा बरकी बहरान के खात्मे के लिए NTPC के अहदेदारों से भी मुलाकात की है। वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना में बरकी प्रोजेक्ट्स के क़याम के सिलसिले में भी नुमाइंदगी की। चंद्रशेखर राव ने विशाखापट्टनम में आए तूफान के तनाजुर में आंध्र प्रदेश हुकूमत को मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। तेलंगाना के वज़रा ने तेलुगुदेशम कायदीन को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो बरकी बहरान पर मुबाहस के लिए आगे आएं। पार्टी दफ्तर में नलगुंडा और जिले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने वज़रा जगदीश्वर रेड्डी और महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि बरकी बहरान के लिए चंद्रबाबू नायडू जिम्मेदार हैं और इस बात को हम साबित करने के लिए भी तैयार हैं। तेलुगुदेशम कायदीन इसका जवाब देने के बजाय बस यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू खुद उनके ही कायदीन के सवालात का जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं है, इसीलिए वो कायदीन को मसरूफ रखने के लिए बस यात्रा निकालने की हिदायत दी है और कहा कि ऐसे 1000 चंद्रबाबू नायडू भी आ जाएं तो तेलंगाना की तरक्की को नहीं रोक सकते। इस मौके पर वजीर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन अपनी पार्टी की बका के लिए बस यात्रा निकालें, हुकूमत पर तनकीद ना करें वरना उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू अपनी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्टी MLAs को गुमराह कर रहे हैं और कहा कि अवाम कांग्रेस और तेलुगुदेशम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। अगर ये दोनों जमातें TRS को निशाना बनाएंगी तो उसका जवाब अवाम ही देगी। మేము స్పష్టంగా అడిగినాం, తెలంగాణలో కరెంటు లేకపోవడానికి కారకులు చంద్రబాబు నాయుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలే కారణమా కాదా? అవునని నిరూపించడానికి 100 కాదు 1,00,000 కారణాలు చూపించినాం. కాదని ఒక్కటి కూడా చెప్పలేదు. మా నాయనతో సవాలు సిద్ధమా అని నేను చెప్పిన, మీ అయ్యకు అంత ధైర్యం లేదు, మా కేసీఆర్ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడే శక్తి లేదు, మా దాంట్లో ఒక్క కరెంటు ఉద్యోగి చాలు మీ అయ్యతో చర్చ చేయడానికి, దమ్ముంటే రమ్మను అని చెప్పిన। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम 13 अक्टूबर बरोज़े पीर को खत्म हो जाएगी। 288 रुकनी असेंबली के लिए इस बार हमरुखी मुकाबला होने जा रहा है। बरसों से हलीफ रही जमातें अब तन्हा इन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। शिवसेना और बीजेपी का इत्तेहाद जहां टूट गया है, वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी अलग होकर एक दूसरे के खिलाफ इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दाखिल होने से हलचल मची हुई है। सर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हालिया इंतखाबी दौरों और कामयाब जलसों के अलावा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की
वलोला अंगेज तकारीर से इंतखाबात में और भी दिलचस्पी पैदा हो गई है। औरंगाबाद, नांदेड़, शोलापुर, मालीगांव, मुंबई और थाने डिस्ट्रिक्ट में मजलिसी उम्मीदवारों को हौसला अफजा रद्दअमल हासिल हो रहा है। बाज इंतखाबी तज्जियों में ये बात सामने आई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की सियासत में असरअंदाज होने जा रही है। राय दहिंदों में भी गैर मामूली जोश और क्रोश देखा जा रहा है। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासत में जारी बरकी बहरान पर हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन पर जवाबी हमले करने के बजाय अवाम के मसाइल की यकसुई पर तवज्जो दे। उन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी की बस यात्रा पर भी तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना कायदीन को चाहिए कि वो बस यात्रा करने के बजाय चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डालते हुए तेलंगाना के हिस्से में आने वाली बरखी को हासिल करें। तेलंगाना हुकूमत ने जामे सर्वे को जिंदा तिलिस्मात करार दिया था, उसके बावजूद वज़ाइफ और तमानियत ग़िज़ाई कार्ड्स के लिए मुख्तलिफ क़वायद के साथ 15 अक्टूबर तक ही दरख्वास्त दाखिल करने की मोहलत रखी गई है, जो मुनासिब नहीं है। इसमें मजीद तौसीक करने का भी मुतालबा किया। कहते हैं कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनना पड़ता है। ठीक इसी तरह आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हालत भी ऐसी ही है। तेलुगुदेशम पार्टी के शहर से ताल्लुक रखने वाली टी श्रीनिवास यादव और पी कृष्णा रेड्डी के पार्टी छोड़ने के बाद अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में पार्टी को कमजोर होता देखकर चंद्रबाबू नायडू कोई और खायद नहीं मिला। 2003 में नकली स्टैम्प के मुकदमे में जेल जाने वाले कृष्णा यादव को पार्टी से खारिज कर दिया गया था। ताहम जेल से छूटने के बाद सन 2014 में कृष्णा यादव के पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने उनको टिकट नहीं दिया था। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कॉरपोरेशन के इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कृष्णा यादव को अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का सदर बनाए जाने की इतला है, ताकि कॉरपोरेशन के इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी मिले या न मिले, कम से कम पार्टी की बका को कृष्णा यादव यकीनी बना सकते हैं। ताहम चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले से अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कई पार्टी कायदीन नाराज हो जाने की भी इतलात है। तमानियत खुराक कार्ड्स की वसूली तक मजीद सफेद राशन कार्ड के नामों को फहरिस्त से हज़फ कर दिया जाएगा। एक खानदान के 2 कार्ड्स और मुकाम तब्दील करने वालों के कार्ड्स को पहले ही हज़फ कर दिया गया है। जून 2014 में 51,84,000 से ज़्यादा सतह गुर्बत से जिंदगी गुजारने वालों के कार्ड्स थे, जो सितंबर तक 79,55,000 तक पहुंच गए हैं। नए क़वायद के मुताबिक मजीद सफेद राशन कार्ड्स को हज़फ किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि मरकज़ की फूड सिक्योरिटी एक्ट के रहनुमाना खतूत के मुताबिक दही इलाकों में 60.96% और शहरी इलाकों में 41.14% अवाम को इस एक्ट के तहत ग़िज़ा फराहम की जाएगी। रियासती हुकूमत मरकजी एदाद शुमार के मुताबिक कार्ड्स फराहम करने पर गौर कर रही है। दही इलाकों में 60,000 और शहरी इलाकों में 75,000 से कम आमदनी रखने वाले ही सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को जुमरे में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने तमानियत खुराक कार्ड्स की दरख्वास्तों की वसूली के लिए 15 अक्टूबर की मोहलत रखी है और साथ ही साथ उसके लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। गौरतलब बात यह है कि हुकूमत की जानिब से इस स्कीम के सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी के लिए मौसर तशहीर नहीं की गई, जबकि इस स्कीम के फ़ायदा उठाने के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। वज़ाइफ और तमानियत खुराक के लिए दरख्वास्तों की वसूली के अमल के सिलसिले में वरंगल के ज़िले कलेक्टर किशन ने ज़िले के तमाम ओहदेदारों की रुख्सत को मनसूख कर दिया है और यह हिदायत दी है कि वरंगल ज़िले में इन दोनों स्कीमों से किसी भी मुस्तहिक अफराद को महरूम न रखा जाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले बीएससी, बीए और बीकॉम के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर के प्रताप रेड्डी के बयान के मुताबिक मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को मुलतवी किया गया है। नई तवारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश के सीबीटी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया है। ये इम्तिहान 2 तारीख को मुनक़द किया जाएगा।
امتحان کے اوقات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات ویب سائٹ www.osmania.ac.in سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر مندر کی پرانی کمان کو انہدامی کارروائی کے دوران حالات کشیدہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اتوار کے دن GHMC کی ٹیم پولیس فورس کے ساتھ بنجارہ ہلز پہنچی تاکہ مندر کی نئی کمان تعمیر کرنے کے بعد قدیم کمان کو منہدم کیا جا سکے، لیکن یہاں بھی زعفرانی جماعت کے کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ مزاحمت کی۔ BJP کے متعلقہ رکن اسمبلی نے رام چندر ریڈی BJP کے کارکنوں کی تائید میں پہنچ گئے، لیکن محکمہ بلدیہ کی جانب سے جاری کیے گئے احکامات کو دیکھنے کے بعد وہ خاموش چلے گئے، جس کے بعد بلدی ٹیم نے اپنی کارروائی انجام دی۔ چادرگھاٹ برج موسیٰ نگر علاقے میں سیندی کمپاؤنڈ کو قائم کرنے کے خلاف مقامی عوام نے شدید احتجاج کیا ہے اور کمپاؤنڈ قائم کرنے کے لیے دیے گئے اجازت نامے کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں موسیٰ نگر کے علاقے میں مقامی عوام نے کمپاؤنڈ قائم کرنے کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے پولیس سے رجوع ہوئے تو پولیس نے یہ کہتے ہوئے پلہ جھاڑ دیا کہ ان کے پاس کمپاؤنڈ کھولنے کی اجازت ہے، لہٰذا وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مقامی عوام اس مسئلے کو لے کر نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علیہ سے رجوع ہوئے تو انہوں نے تیقن دیا کہ اس سلسلے میں وہ ضروری کارروائی کریں گے۔ اگر عوام یہاں کمپاؤنڈ نہیں چاہتی ہے تو کمپاؤنڈ قائم نہیں ہوگا۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس اور امبرپیٹ پولیس نے مختلف یونیورسٹیز کے جعلی دستاویزات تیار کرنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نلگنڈے کے رہنے والے 33 سالہ بی ستیہ اور کنگ کوٹھی کے رہنے والے 35 سالہ شیخ محمد العمودی کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدہ افراد کمپیوٹر اور کلر پرنٹر کے ذریعے سرٹیفکیٹس تیار کر کے بھاری رقومات پر فروخت کیا کرتے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ ستیہ کو اس سے پہلے افضل گنج پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا تھا۔ اس سلسلے میں مقدمہ عدالت میں زیر دورہ ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے عثمانیہ یونیورسٹی کے 6 جعلی سرٹیفکیٹس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم اور کلر پرنٹر ضبط کرتے ہوئے مزید پوچھ تاچھ کے لیے امبرپیٹ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے جرائم کی روک تھام کے لیے شروع کیے گئے کارڈن سرچ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب منگل ہاٹ میں مختلف مقامات پر دھاوے کیے۔ ویسٹ زون DCP ستیہ نارائنا کی قیادت میں عہدیداروں نے منگل ہاٹ میں گڑمبا تیار کرنے والے مقامات اور غیر سماجی عناصر کے مکانات پر دھاوے کرتے ہوئے سینکڑوں گڑمبے کے بیرلز، موٹر سائیکلیں اور کاریں ضبط کر لی۔ پولیس نے 42 غیر سماجی عناصر کو بھی حراست میں لیا ہے۔ منگل ہاٹ میں کشیدگی اس وقت پھیل گئی جب پولیس کی کارروائی میں مداخلت کرتے ہوئے مقامی رکن اسمبلی نے کارڈن سرچ کو روکنے کی کوشش کی۔ نہ صرف پولیس بلکہ میڈیا کے نمائندوں پر بھی مقامی رکن اسمبلی نے حملہ کیا۔ واضح کے سلسلے میں سب سے پہلے پہاڑی شریف میں پیش آئے واقعے کے بعد سائبر آباد پولیس نے کارڈن سرچ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد سٹی پولیس نے بھی کارڈن سرچ کے ذریعے کئی راؤڈی شیٹرز کو PD ایکٹ کے تحت جیل بھیج دیا تھا۔ DCP ستیہ نارائنا نے کہا کہ جب تک معاشرے سے غیر سماجی عناصر کا خاتمہ نہیں ہوتا تب تک حیدرآباد پولیس اس طرح کی کارروائیوں کو جاری رکھے گی۔ ستیہ نارائنا نے کہا کہ سٹی کمشنر کی ہدایت پر یہ کارروائی کی جا رہی ہے اور وقت کا تعین بھی سٹی کمشنر پولیس کرتے ہیں۔ ریلوے پولیس نے گانجا منتقل کرنے والی ایک 4 رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے 120 کلو گانجا ضبط کر لیا ہے۔ DSP ریلوے پولیس B مرلی دھر نے میڈیا کو بتایا کہ 37 سالہ کے مہاپتر، 40 سالہ پریم کمار نائک، 24 سالہ ہیمنت پرا اور ساہنتا پانی کو گرفتار کر لیا ہے اور بتایا کہ چاروں 120 کلو گانجا برہمپور اوڈیشہ سے پونا منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تفتیش پر گرفتار شدہ افراد نے بتایا کہ گزشتہ 2 سال سے ٹرین کے ذریعے گانجا ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کر رہے ہیں۔ الجبیل کالونی واقع چندران گٹے کے ایک مکان سے 20 تولے کے طلائی زیورات اور 1.5 لاکھ روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ ہفتے کی شب گھر کے افراد خاندان کے ساتھ ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اتوار کی صبح گھر پہنچے تو سارا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جبکہ مذکورہ اشیاء الماری سے غائب تھیں۔
राजीव गांधी नगर वाक़े उपुगुड़े में एक कम उम्र लड़की ने खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक 13 साल स्वाति पेट के दर्द की वजह से परेशान थी। उसने तकलीफ से निजात पाने के लिए इतवार के दिन घर में सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। छतरीनाका पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। वटेपली में कर्ज अदा न करने पर फाइनेंसर की जदोकूब का शिकार नौजवान फौत हो गया है। वाज़ेह है कि मजीद पटेल नामी शख्स ने खालिद से 9 लाख रुपए कर्ज हासिल किया था और सूद की रकम भी अदा कर रहा था, लेकिन कर्ज की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए फाइनेंसर खालिद उसे मुसलसल हरासा कर रहा था। जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब खालिद ने मजीद को जदोकूब किया था, जिसके बाद वो कोमा में चला गया था। इतवार को मजीद जख्मों से जाबर ना हो सका। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलुगुदेशम कायदीन की बस यात्रा बेशर्मी की अलामत, रियासती वजीर हरीश राव की तनकीद। तूफान हुदहुद विशाखापट्टनम के साहिल से टकरा गया। जिले में बड़े पैमाने पर तबाही, 5 अफराद हलाक। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए पीर को इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन। इंतखाबी अमल में मजलिस के उतरने से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। मंगलहाट के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के ठिकानों पर पुलिस के दावे। गैर समाजी 42 अफराद गिरफ्तार। गांजा मुंतकिल करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार, रेलवे पुलिस की कार्रवाई। और चंद्रायनगुट्टे के इलाके अलजुबेल कॉलोनी में सरखे की संगीन वारदात। 20 तोले तिलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए लेकर सारिक फरार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।